A brief introduction of myself. Basically, my name is Sayyid Ali Sajjad Masood Naqvi. I have done Master of Sciences from Food Science and Technology, University of Karachi, back in 2011. After doing MSc in Food Science and Technology, I have done postgraduate diploma in Food Safety and Controls, which was again from Karachi University, same department, Food Science and Technology department, but it was affiliated with UNIDO. Later on, after having a experience in manufacturing industries, I pursued MBA in Logistics and Supply Chain Management from Institute of Business Management. Recently graduated from Institute of Business Management. Overall experience is around 8 years. बड़ा डायनेमिक सा और काफ़ी हौश पौश टाइप का है. सर्विस इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इसमें बोथ मिक्सचर्स हैं. पार्शली 4 इयर्स मैंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काम किया, पार्शली 4 इयर्स तकरीबन मैंने सर्विस इंडस्ट्री में काम किया है. I started my career with URS, which was a service industry as a food safety auditor. And then later on in 2013, I switched to English Biscuits Manufacturers as quality assurance executive. There I served approx 4 years, more than 4 years. And after serving English Biscuits Manufacturers in different capacities in quality assurance department and compliance department, I switched to Bureau Veritas certification, Pakistan, as an assistant manager food operations in 2017. Uh, I worked in Bureau Veritas for more than 3 years, and now currently, just recently switched to a new manufacturing organization in different range of product, that is spice industry. Uh, Currently working there. जहाँ तक क्वालिफिकेशंस की बात करें या सर्टिफिकेशंस की बात करें, वो है आई एम लीड ऑडिटर फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 9001, ISO 22000, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम 2018, environmental management system ISO 14001, BRC food issue 7, and halal PS 373 standards. Moreover, other technical specifications की बात करें तो I am certified by CIEH up to level 3, food safety manufacturing professionals degree. Let's move towards the training regarding BRC. What is BRC? BRC वजूद में कब आया? BRC stands for British Retail Consortium. It is a trade association that was formed in UK in 1992. BRC has published many standards, different standards on food, cosmetics, packaging industry, warehousing practices, and BRC standards are one of the most GFSI recognized standards. GFSI recognition BRC got in 1998 and 2000. That was the first food safety standard that got recognized by GFSI. GFSI is, as a GFSI stands for Global Food Safety Initiatives, and the standard designed BRC is designed on total quality management program, on the basis of total quality management program, which includes food safety management system and quality management system both in it. The current applicable version of BRC is issue 8, which is applicable for food industries, issue 6 for packaging industries, and issue 3 for warehousing and logistics. BRC, why? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल के BRC ही क्यों, जबकि इतने सारे स्टैंडर्ड्स हैं. ISO 22000 भी है, ISO FSSC भी है, HACCP भी है. So basically BRC improves food safety, facilitate in improvement of efficiencies and the product manufacturing, enables manufacturers to meet the customer demand, reducing multiple audits. How it reduces multiple audits? Being GFSI recognition, having quality management system in it, having food safety management system in it, reduces external audits. कि अगर आपके पास GFSI recognized BRC standard है, तो definitely आपके एक्सटर्नल ऑडिट्स जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं. स्कोप ऑफ BRC फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, ये जो BRC इशू 8 का स्टैंडर्ड है, ये स्कोप इसका क्या है या किन किन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर ये एप्लीकेबल है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एप्लीकेबल फॉर प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्रीज. इधर यू आर मैन्युफैक्चरिंग योर ओन ब्रांड और कस्टमर ओरिएंटेड ब्रांड बना रहे हो, यानी टॉल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो.
फॉर दोज इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल्स या इंग्रेडिएंट्स के अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही होती हैं. फॉर एन एग्जांपल यू कैन से फ्लेवर इंडस्ट्रीज, यू कैन से ग्लूकोज इंडस्ट्रीज. प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल है. एंड ये स्टैंडर्ड जो अलग से जो एफएसएमएस और एफएसएससी में क्वेश्चन नहीं है, ये पेट फूड के ऊपर भी एप्लीकेबल है. एफएसएससी के अंदर जैसे हम कहते हैं कि उसके लिए एक अलग टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पेट फूड्स के लिए लेनी पड़ती है, एक उसका स्टैंडर्ड टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस का अलग है. बट बीआरसी इशू 8 जो है वो इक्वली पेट फूड के ऊपर भी, अगर इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग एनी पेट फूड फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स, तो ये स्टैंडर्ड बीआरसी फूड इशू 8 ही आपके ऊपर एप्लीकेबल है. बीआरसी इशू 8 उसके फोकल पॉइंट्स जो है, सबसे पहले जो आई एम फोकस्ड ऑन दोज पॉइंट्स जो किसी और स्टैंडर्ड ने इतने कवर किए हैं लेकिन बीआरसी ने एग्जैक्टली बताया कि करना क्या है. दैट इज डेवलपमेंट ऑफ फूड सेफ्टी कल्चर, expansion in requirements of environmental monitoring program, encouraging site to the encouraging sites to develop security system, food defense system, adding clarity, requiring high risk area, high care area, ambient high care area या प्रोडक्शन जोनिंग्स के ऊपर बात करता है. प्रोवाइडिंग ग्रेट क्लैरिटी फॉर साइट मैन्युफैक्चरिंग फॉर पेट फूड्स, ensuring that it is applicable, it is ensuring all the requirement that is in GFSI standards. तो बेसिकली GFSI को बेंचमार्क करके इसके फोकल पॉइंट्स हैं. बीआरसी ऑडिट, बेसिकली बीआरसी ऑडिट का कहना जरूरी ये होगा कि बीआरसी ऑडिट दो तरीकों से होता है. एक अनाउंस्ड ऑडिट, एक अनअनाउंस्ड ऑडिट. ये आपकी कस्टमर के ऊपर अपने ऊपर होता है जो स्टैंडर्ड ले रहा है ऑर्गेनाइजेशन, कि वो अनाउंस स्कीम की तरफ जा रहा है या अनअनाउंस्ड स्कीम की तरफ जा रहा है. आफ्टर म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन क्लाइंट एंड सर्टिफिकेशन बॉडी, वो अपनी सीआर, अपनी प्रोफाइल बीआरसी को भेजते हैं, जिसके बाद उसका ऑडिट प्लान होता है. इन अनाउंस्ड ऑडिट डेट इज कन्फर्म्ड, सीबी और क्लाइंट के दरमियान में डेट एग्रीड होती है कि हम इस डेट को ऑडिट करेंगे. अनअनाउंस्ड ऑडिट के अंदर वंस क्लाइंट फॉर्म फिल कर देता है, आफ्टर दैट क्लाइंट को डेट नहीं पता होती अनअनाउंस्ड ऑडिट की. अच्छा, अदर देन लाइक अदर स्टैंडर्ड्स, उनमें उनका जो सर्टिफिकेशन साइकिल होती है वो 3 इयर्स की होती है. बट इन बीआरसी सर्टिफिकेशन साइकिल सिर्फ और सिर्फ 1 साल की होती है. जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है दैट इज वैलिड फॉर ओनली 1 ईयर. सो आपको जो अगला ऑडिट कराना होता है वो अपनी सर्टिफिकेट की एक्सपायरी डेट से पहले करवाना होता है. वो लेटर हम उसको हम डिस्कस भी करेंगे किस तरीके से उस डेट का हम डिसाइड करते हैं, कैसे वो डेट हमको पता चलती है कि किस डेट के दरमियान हमारा ऑडिट ड्यू है, किस डेट के दरमियान हमें ऑडिट करवाना है, सो ऑन. अच्छा, अनाउंस्ड ऑडिट और अनअनाउंस्ड ऑडिट के अंदर एक और फर्क होता है कि अगर कोई साइट अनाउंस्ड ऑडिट की तरफ जा रही है तो उसको ग्रेड, सिंपल ग्रेड अवार्ड होता है. अगर कोई साइट अनअनाउंस्ड ऑडिट की तरफ जाती है तो उसको एक ग्रेड अवार्ड होता है, प्लस उसके साथ ग्रेड के साथ स्टार लगा हुआ होता है. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई साइट अनाउंस्ड ऑडिट की तरफ जाती है उसको ग्रेड मिलेगा ए, बी, सी, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ नॉन कन्फर्मिटीज. अनअनाउंस्ड ऑडिट की तरफ अगर कोई साइट अप्रोच करती है, जाती है, अनअनाउंस्ड ऑडिट स्कीम को वो लेती है, तो उसको जो भी ग्रेड मिलेगा, फॉर एन एग्जांपल ए मिलेगा, तो इट विल बी ए प्लस. प्लस साइन विल बी रिफ्लेक्टिंग दैट दिस साइट हैज ऑप्ट फॉर अनअनाउंस्ड ऑडिट. इन अनअनाउंस्ड ऑडिट ऑडिटर आपके दरवाजे पे आ के नॉक करता है एंड देन वहां से ऑडिट स्टार्ट होता है. और आफ्टर नॉकिंग हाफ आवर के अंदर आपको ऑडिट स्टार्ट करना होता है. बीआरसी स्टैंडर्ड जो है इशू 8 फूड, बीआरसी ग्लोबल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है, बेसिकली इट इज डिवाइडेड इन 9 डिफरेंट सेक्शंस. 9 डिफरेंट चैप्टर्स कह लें या सेक्शंस कह लें. फर्दर दीज सेक्शंस एंड चैप्टर्स आर फर्दर डिवाइडेड इन सब क्लॉजेस. ईच सेक्शन के ऊपर उन्होंने उसको नाम दिया हुआ है. जो सेक्शन नंबर 1 है इट इज सीनियर मैनेजमेंट कमिटमेंट. सेकंड सेक्शन 2 है वो बेसिकली फूड सेफ्टी को पूरे प्रोग्राम को देखता है, दैट इज कॉल्ड फूड सेफ्टी प्लान सेक्शन. सेक्शन 3 जो है वो बेसिकली फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को देखता है. सेक्शन 4 के अंदर
वो उन्होंने अपनी साइट स्टैंडर्ड्स, तमाम साइट्स के स्टैंडर्ड्स लिखे हुए कि बीआरसी की साइट को एक्चुअली होना कैसा चाहिए या उसके प्रोटोकॉल्स कैसे होने चाहिए। सेक्शन 4 जो है वो प्रोडक्ट कंट्रोल सेक्शन है। सेक्शन 6 जो है उसमें प्रोसेस कंट्रोल्स की बात है। सेक्शन 8 बेसिकली इज अबाउट रिगार्डिंग पर्सनल एंड पर्सनल हाइजीन, उनकी ट्रेनिंग्स, उनकी अवेयरनेस। सेक्शन 8 जो है कुछ केसेस में ये एप्लीकेबल होता है, कुछ केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता। इन केस कि अगर आपकी प्रोडक्ट की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ऊपर एप्लीकेबल है, तो ये सेक्शन, इसका पर्टिकुलर एरिया आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। फॉर एन एग्जांपल सेक्शन 8 में हाई केयर एरिया है, हाई रिस्क एरिया है, एम्बियंट हाई केयर एरिया है, यानी प्रोडक्शन की जोनिंग के हिसाब से आपको ऑडिट होगा। इन केस कि आपके पास कोई हाई रिस्क एरिया नहीं है तो ये वाला सेक्शन आपके ऊपर नॉट एप्लीकेबल हो जाता है। अगर आपके पास कोई हाई केयर एरिया नहीं है तो आपके ऊपर ये नॉट एप्लीकेबल हो जाता है। अगर आपके पास कोई एम्बियंट हाई केयर एरिया नहीं है तो ये आपके पास नॉट एप्लीकेबल हो जाता है। प्रोडक्शन रिस्क जोनिंग्स के हिसाब से होता है। थर्ड, रिक्वायरमेंट फॉर ट्रेडेड प्रोडक्ट्स है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी ट्रेडेड प्रोडक्ट्स के अंदर भी इन्वॉल्व है तो उसके ऊपर ये क्लॉज एप्लीकेबल होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन पे शुरू के 7 क्लॉजेस या 7 चैप्टर्स तो एप्लीकेबल होते हैं। क्लॉज नंबर 8 या सेक्शन नंबर, चैप्टर नंबर 8 या सेक्शन 8 जो है कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पे एप्लीकेबल होगा, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सिमिलरली सेक्शन नंबर 9 उन सिर्फ उन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर एप्लीकेबल होगा जो ट्रेडेड प्रोडक्ट्स के अंदर डील कर रही है। इसको हम लेटर जो चैप्टर्स हैं उनको हम लेटर उसको देख लेंगे कि किस तरीके से होता है। सेकंड, बीआरसी के अंदर कैसे रिक्वायरमेंट सेट होती है। ईच सेक्शन जो है, मतलब चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, वो सेक्शन स्टार्ट होता है विद स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। जैसे मैंने नीचे एक क्लॉज का रेफरेंस भी दिया हुआ है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इट्स क्लॉज नंबर 3। इसके अंदर जो ग्रीन हाईलाइटेड एरिया है जिसके नीचे एक समरी लिखी हुई है, इट्स ओवरऑल समरी ऑफ दैट स्टैंडर्ड, जिसके अंदर वो तमाम रिक्वायरमेंट्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होनी चाहिए या ड्यूरिंग ऑडिट इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, ड्यूरिंग ऑडिट ऑडिटर को देखनी है, वो इसके अंदर क्लियरली मेंशन होती है। इन केस कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट को फुलफिल करने के फुलफिल नहीं कर पाती तो उसको एक मेजर एनसीआर रेज होती है। मेजर एनसीआर का बीआरसी में बड़ा क्रिटिकल रोल होता है, जो हम उसको एंड ऑफ प्रेजेंटेशन भी देखेंगे कि क्रिटिकल रोल इसलिए होता है कि दीज ऑल एनसीआर, मेजर माइनर एनसीआर, हमारा ग्रेड डिसाइड करती है। जितने नंबर ऑफ एनसीआर होंगे उस हिसाब से हमारा ग्रेड होगा। सो कभी भी अगर आप बीआरसी का स्टैंडर्ड देखें, उसके अंदर आपको ये ग्रीन सेक्शन किसी भी इस क्लॉज के नीचे, किसी चैप्टर के नीचे नजर आए तो इट मींस इट रिफ्लेक्ट्स दैट कि ये स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है, यानी ये ओवरऑल क्लॉज की जो उसके सब क्लॉजेस हैं उसकी समरी है। इन केस आपने तमाम रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की हुई हैं लेकिन स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट को फुलफिल नहीं कर रहे, उसकी समरी को फुलफिल नहीं कर रहे, देन अ मेजर एनसीआर कैन बी रेज्ड अगेंस्ट स्पेसिफिक क्लॉज। फंडामेंटल क्लॉज, बीआरसी इशू 8 के अंदर 11 फंडामेंटल क्लॉज जो एक इसकी यूनिकनेस भी है। फंडामेंटल क्लॉज आर डिनोटेड बाय अ स्टार दैट इज आल्सो शोन ऑन स्क्रीन। ऑन राइट साइड स्क्रीन के वो शो हो रहा है, एक राउंड है उसके अंदर ग्रीन में स्टार बना हुआ है। दीज ऑल क्लॉजेस आर कॉल्ड एज फंडामेंटल क्लॉज। इन केस कोई ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटल क्लॉज को फुलफिल करने में नाकाम होती है तो स्ट्रेट क्रिटिकल एनसीआर, स्ट्रेट क्रिटिकल एनसीआर मींस कि ऑडिट अबॉर्ड हो जाता है। ये फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स या फंडामेंटल क्लॉजेस बीआरसी में है कितनी? बेसिकली बीआरसी में फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स है 11। क्लॉज नंबर 1.1 दैट इज रिलेवेंट टू सीनियर मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, इसके ऊपर फंडामेंटल क्लॉज है। फूड सेफ्टी प्लान दैट इज हैसअप, उसके ऊपर फंडामेंटल क्लॉज है। इंटरनल ऑडिट्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फुलफिल नहीं हो पा रहे एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ बीआरसी, देन अगेन नॉन कन्फॉर्मेंस है अगेंस्ट इंटरनल ऑडिट, क्लॉज नंबर 3.4। इसी तरीके से लेटर ऑन जितनी क्लॉजेज स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई हैं इनके अगेंस्ट के ऊपर आपकी फंडामेंटल के अगेंस्ट पे एनसीआर रेज हो जाती है। वंस फंडामेंटल के अगेंस्ट पे एनसीआर रेज होती है देन इट इज नोन एज क्रिटिकल एनसीआर, और क्रिटिकल एनसीआर के अगेंस्ट पे ऑडिट अबॉर्ड हो जाता है। फॉरेन ऑडिट
अपहोल्ड हो जाता है, और जब तक कि उसकी फुलफिलमेंट नहीं होती ऑडिट स्टार्ट नहीं हो सकता। विद इन 14 डेज आपको ऑडिट रीस्टार्ट करवाना होगा करेक्टिव एक्शन सबमिट करवा के, इफ यू वांट टू कंटिन्यू योर बीआरसी सर्टिफिकेशन। बीआरसी के स्टैंडर्ड के अंदर अगर हम देखें सॉफ्ट के अंदर, तो कलर कोडिंग स्कीम होती है। इसमें दो डिफरेंट कलर्स यूज हुए हैं, एक ग्रीनिश ग्रे कलर है और एक पीच कलर है। अगर पीच कलर है तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे ऑन साइट ऑडिट, गुड मैन्युफैक्चरिंग का ऑडिट करना है। बेसिकली ये विजुअल ऑडिट भी होगा, प्लस इसके साथ आप वहां जाके प्रैक्टिसेस नोट कर रहे होंगे अगेंस्ट द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट। अगर वह उस क्लॉज के आगे स्पेसिफिकली ग्रीन कलर की रिक्वायरमेंट आ रही है, वो क्लॉज ग्रीन कलर के उसके अंदर हाईलाइट हो रहा है, तो उसके उस रिकॉर्ड के अगेंस्ट के ऊपर आपको डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड के अगेंस्ट ऑडिट करना होगा। वहां पे आपको प्रैक्टिकली एविडेंस नहीं चाहिए। इन केस किसी क्लॉज के अगेंस्ट पे ये दोनों रिक्वायरमेंट्स सामने सामने नजर आ रही हैं, यानी पार्शियली इट इज ग्रीन, पार्शियली इट इज पीच कलर, तो इसके अंदर आपको दोनों का ऑडिट करना होगा। यानी आप प्रैक्टिकली उसको ऑब्जर्व भी करेंगे और उसको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में देखेंगे भी, यानी उसके रिकॉर्ड्स भी देखेंगे, उसका प्रोटोकॉल भी देखेंगे, प्रोसीजर्स भी देखेंगे, और उसको ऑन साइट उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी जाके वेरीफाई करेंगे। ये बीआरसी की एक यूनिक कलर कोडिंग स्कीम है जिसके अगेंस्ट के ऊपर ही उसका ऑडिट होता है। नाउ स्टार्टिंग विथ चैप्टर 1, दैट इज सीनियर मैनेजमेंट कमिटमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीनियर मैनेजमेंट होती है। बीआरसी की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई हुई है कि सीनियर मैनेजमेंट से क्या मुराद है। बीआरसी कहता है कि साइट की टॉप मोस्ट अथॉरिटी जो होगी दैट इज कॉल्ड द सीनियर मैनेजमेंट। उस सीनियर मैनेजमेंट के अगेंस्ट पे बीआरसी ने कुछ रिक्वायरमेंट्स दी हुई है, दैट इज कि सीनियर मैनेजमेंट शुड शो इट्स कमिटमेंट्स एंड टुवर्ड्स कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी? वो रिफ्लेक्ट होगी उसकी फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी पॉलिसी से, उसकी इन्वॉल्वमेंट इन मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग्स, फूड सेफ्टी मीटिंग्स, रिपोर्टिंग सिस्टम कि उसने क्या रिपोर्टिंग सिस्टम आउट ऑफ स्पेक्स प्रोडक्ट्स के लिए लिखा हुआ है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम उसने क्या डिफाइन किया हुआ है, फूड सेफ्टी कल्चर उसने किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, ऑब्जेक्टिव्स बीआरसी ने किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे डिफाइन किए हुए, जो इनलाइन है विद देयर पॉलिसीज, विद देयर विजन, विद देयर मिशन, विद देयर स्कोप ऑफ वर्क। ह्यूमन रिसोर्स एंड फाइनेंशियल रिसोर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कितनी प्रोवाइड की हुई है। सेकेंड, नॉट ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इट इज एप्लीकेबल ऑन सीनियर मैनेजमेंट। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट आफ्टर ड्यू डेट ऑफ ऑडिट होता है, तो अगेन उसके सीनियर मैनेजमेंट के अगेंस्ट पे एक मेजर एनसीआर रेज हो जाती है। दैट मेजर एनसीआर रिजल्ट इन ग्रेड, और ऑडिट जो की रिक्वायरमेंट है या ऑडिट शेल बी परफॉर्म विद इन द ड्यू डेट ऑफ सर्टिफिकेट। तो हम लेटर ऑन उसमें सर्टिफिकेट पे देखेंगे कि हमें पता कैसे चलता है कि ऑडिट की ड्यू डेट है कैसे। सेकंड जो पॉइंट है वो है यूज ऑफ लोगो पॉलिसी। सीनियर मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूजिंग लोगो ऑफ बीआरसी। बीआरसी स्ट्रेट मना करता है कि किसी प्रोडक्ट की प्राइमरी पैकेजिंग के ऊपर या सेकेंडरी पैकेजिंग के ऊपर आप बीआरसी का लोगो यूज नहीं कर सकते। कुछ स्टेटमेंट्स वो अलाउ करता है, वो उसकी लोगो पॉलिसी के अंदर लिखी हुई है। सेकेंडली, अगर आपको बीआरसी का लोगो यूज करना है, यू कैन ओनली यूज ऑन योर मार्केटिंग मटेरियल या वेबसाइट। अगेन वेबसाइट पे यूज करने की भी एक पॉलिसी है कि अगर आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड है तभी आप बीआरसी का लोगो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यू कांट यूज पॉलिसी। नौ बात करते हैं पॉलिसी की। पॉलिसी के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स उसमें बीआरसी कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी शुड कवर कि उसके अंदर कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट की बात हो रही हो, उसमें प्रोडक्ट सेफ्टी की बात हो रही हो, उसमें लीगल एंड रेगुलेटरी लॉज की बात हो रही हो, उसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात हो रही हो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात हो रही हो, एंड कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट की बात हो रही हो, तो वो बीआरसी कंप्लाइंट मानी जाएगी विद द रिक्वायरमेंट ऑफ बीआरसी स्टैंडर्ड। मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग्स, अगेन मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग्स के अंदर बीआरसी कहता है कि सीनियर मैनेजमेंट का मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग में होना जरूरी है, और एटलीस्ट इसकी फ्रीक्वेंसी साल के अंदर एक बार लाजमी है। अ पार्ट ऑफ फूड सेफ्टी, अ पार्ट्स ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग
बीआरसी रिक्वायर करता है कि टॉप मैनेजमेंट एक प्रोटोकॉल डिफाइन करे जिसके अंदर ऑपरेशनल एंड फंक्शनल हेड बैठ के फूड सेफ्टी मीटिंग करें। दैट फूड सेफ्टी मीटिंग इनकम्पास करे तमाम फूड सेफ्टी इश्यूज को जो लास्ट मंथ या किसी एक पर्टिकुलर मंथ के अंदर आए हैं, फिर उनकी प्रोग्रेस देखें। और ये इसके ऊपर फूड सेफ्टी मीटिंग्स जो मंथली बेसिस के ऊपर जिसकी फ्रीक्वेंसी है एटलीस्ट मंथली है, इसकी फ्रीक्वेंसी आप वीकली भी रख सकते हैं, फोर्टनाइटली भी रख सकते हैं या मंथली भी रख सकते हैं। उसके ऊपर मैनेजमेंट के इनपुट्स आना लाजमी है, यानी आप मैनेजमेंट उससे शेयर कर जो फूड सेफ्टी मीटिंग्स के पॉइंट्स हैं वो मैनेजमेंट से शेयर हो, और मैनेजमेंट का इनपुट या उसके ऊपर रिव्यू या उसके ऊपर उनका वर्डिक्ट आना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिकॉज दीज, और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इस फूड सेफ्टी मीटिंग से जो निकलता है वो ये है कि फूड सेफ्टी मीटिंग शुड बी, फूड सेफ्टी मीटिंग के अंदर जो ज्यादा अकरेंस इश्यूज हो वो आप अपने फूड सेफ्टी कल्चर में एड्रेस करेंगे एंड ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट बनाएंगे। सेकेंड पॉइंट जो है वो है रिपोर्टिंग सिस्टम फॉर आउट ऑफ स्पेक्स प्रोडक्ट। टॉप मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि वो इस बात को इंश्योर करे कि अगर कोई प्रोडक्ट नॉन कंफर्मिंग हो गई है या आउट ऑफ स्पेक प्रोडक्ट है तो इनके पास कोई पूरा प्रोटोकॉल हो जो आउट ऑफ स्पेक्स प्रोडक्ट्स को एड्रेस करता है। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, ये बीआरसी के अंदर बिल्कुल अलग एक रिक्वायरमेंट है दैट इसका होल्ड सिर्फ और सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास होना चाहिए। और इन केस कोई आदमी अपना नाम छुपा के टॉप मैनेजमेंट को कोई इशू, कोई इंसिडेंट या कोई वाकया या कोई मिसहैप बताना चाहता है या कोई ऐसा इशू बताना चाहता है जिसकी वजह से प्रोडक्ट क्वालिटी या सेफ्टी या एम्प्लॉय की सेफ्टी खतरे में है, या चांस है, पोटेंशियल चांस है कि इसकी वजह से फूड सेफ्टी या क्वालिटी इशू हो सकता है प्रोडक्ट के अंदर, तो वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम के अंदर बता सकता है। वो उसके लिए डिफरेंट तरीके कार है, जैसे कंप्लेंट बॉक्स लगा दिए जाते हैं या कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग बॉक्सेस लगा दिए जाते हैं जिसके अंदर एम्प्लॉयज अपनी राय का इजहार करते हैं। फूड सेफ्टी कल्चर, ये एक यूनिक रिक्वायरमेंट है बीआरसी की। वो कहता है कि आप अपने सिस्टम का जब ऑडिट करते हैं या इश्यूज देखते हैं जो फूड सेफ्टी मीटिंग्स के अंदर या डिफरेंट लेवल्स के ऊपर आपको एड्रेस हो रहे होते हैं, तो उसको इश्यूज को एड्रेस करने के लिए आपको कल्चरल चेंज लाना पड़ेगा। एक इम्पॉर्टेंट वजह यह है कि अब बिलीफ है लोगों का कि बहुत सारी चीजें कह के या डायलॉग्स के जरिए या ट्रेन करके वो की जा सकती हैं। वो इसलिए जरूरी है कि मंथली बेसिस के ऊपर या वीकली बेसिस के ऊपर आप कोई कल्चर, टूल टॉक टाइप कल्चर या फूड सेफ्टी टॉक टाइप कल्चर, हैंड वॉशिंग डेज की सेलिब्रेशन, फूड वर्ल्ड फूड डे की सेलिब्रेशन, इसी तरह हाइजीन डे की सेलिब्रेशन, डिफरेंट टेक्निक्स की तरह लोगों में अवेयरनेस प्रोड्यूस करें कि हाथ धोने हैं तो सही तरीके से कैसे धोने हैं। और इट शुड बी अ ब्रीफ टॉक, मतलब सुबह मॉर्निंग के अंदर हो गई या ड्यूरिंग प्रोडक्शन हो गई, तो इसको डिफरेंट तरीकों से एड्रेस किया जा सकता है। इसको एड्रेस करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका टूल टॉक्स होते हैं। इस दूसरा तरीका इसका अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस जो इसको इम्प्लीमेंट करती है उसमें ये होता है कि वो मॉर्निंग के अंदर जब जैसे असेंबलीज स्कूल्स में होती हैं इसी तरीके की एक शॉर्ट वो टॉक करते हैं, बात करते हैं, अवेयरनेस सेशंस करते हैं, और उसके वो रिकॉर्ड्स इन फॉर्म ऑफ पिक्टोरियल फॉर्म में रख लेते हैं। और वो जो सेशन जो डिलीवर कर रहा होता है वो अपनी प्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन हार्ट के अंदर वो उसके अंदर एविडेंस के तौर के ऊपर रख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंटली बीआरसी रिक्वायर करता है कि ऑब्जेक्टिव्स की परफॉर्मेंस क्वार्टरली रिव्यू होनी चाहिए कि किस ऑब्जेक्टिव पे क्या टारगेट था, इस क्वार्टर में कितना अचीव किया, कितना पेंडिंग है, और इन केस ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ तो उसके अगेंस्ट के ऊपर कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। सेकंड, ह्यूमन रिसोर्स एंड फाइनेंशियल रिसोर्स, एडुकेट रिसोर्सेज प्रोवाइड होनी चाहिए किसी काम के लिए। अगर कोई किसी काम के लिए आपको मेटल डिटेक्टर चाहिए जो लेटर ऑन इस स्टैंडर्ड के अंदर आएगा भी, एक्सरे ऑप्टिकल सॉर्टिंग चाहिए, या आपको सीज चाहिए या मैग्नेट चाहिए, तो डेफिनेटली मैनेजमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो प्रॉपर रिसोर्स, सूटेबल रिसोर्स और एडुकेट रिसोर्स प्रोवाइड करेगी। जो दूसरा पॉइंट है वो है ऑडिट शैल बी परफॉर्म बिफोर द सर्टिफिकेट एक्सपायर। आपका ऑडिट जो लास्ट और ईयर का ऑडिट है उसके ऊपर सर्टिफिकेट के ऊपर एक्सपायरी डेट आ रही होती है। उससे ऊपर अगर हम देखें तो उसके अंदर वो एग्जैक्टली देता है कि सर्टिफिकेट नेक्स्ट ऑडिट डेट है क्या।
जो हम नेक्स्ट इमेज के अंदर, नेक्स्ट कपल ऑफ स्लाइड्स के अंदर हम देखेंगे भी कि वो एग्जैक्टली किस तरीके से शो होता है कि हमें अपना ऑडिट करवाना कब है। इन केस कि हम ऑडिट नहीं करवाते उस ड्यू डेट के अंदर जो सर्टिफिकेट पे लिखी हुई होती है, तो हमारा जो ग्रेड है इट विल बी इफेक्टेड, क्योंकि हमें डायरेक्टली एक मेजर एनसीआर रेज हो जाती है। यूज ऑफ लोगो पॉलिसी पे हम बात कर चुके हैं कि बीआरसी की एक अपना प्रोटोकॉल है जिसपे यूज ऑफ लोगो पॉलिसी के तहत उसको लोगों को यूज किया जा सकता है। नाउ यू कैन सी कि बीआरसी का जो ऑडिट डेट है वो कैसे शो हो रही होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, बीआरसी का ऑडिट डेट आती है एग्जैक्ट सर्टिफिकेट के ऊपर, दैट इज शोन कि बीआरसी की जो बीआरसी ऑडिट आपका लास्ट हुआ था वो किन डेट्स के ऊपर परफॉर्म हुआ था। फिर उसी के बिल्कुल नीचे जो हम देखेंगे वो उसके नीचे आती है री ऑडिट डेट। उसके अंदर एक विंडो होती है 1 मंथ की। 1 मंथ की ही विंडो इसलिए होती है क्योंकि बीआरसी में अगर इन अगर आपके पास कोई नॉन कन्फर्मेंस रेज हो रही है तो आपके पास ओनली 28 कैलेंडर डेज का टाइम होता है। उन 28 कैलेंडर डेज के अंदर आपको करेक्टिव एक्शन प्लान एंड एविडेंस ऑफ करेक्शन एंड करेक्टिव एक्शन, तो उसमें अपनी सर्टिफिकेशन बॉडी को सबमिट करना होता है और फिर देन सर्टिफिकेशन बॉडी उसको बीआरसी की साइट पे अपलोड करती है। ये सारी चीजें आपका ग्रेड डिसाइड करती है। इन केस आपने री ऑडिट डेट की विंडो में ऑडिट नहीं करवाया, फॉर एन एग्जाम्पल एक सर्टिफिकेट जो मेरे राइट साइड के ऊपर है उसके ऊपर मैं अगर बात करूं कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन 23 सितंबर के बाद अपना ऑडिट करवाती तो इसका ऑटोमेटिक एक ग्रेड डाउन हो जाता है, क्योंकि इसको एक मेजर एनसीआर रेज हो जाती। क्यों? क्योंकि इसकी टॉप मैनेजमेंट ने अपना ऑडिट विद इन द ड्यू डेट ऑफ बीआरसी नहीं करवाया जो बीआरसी ने उसको किया था। सेकेंडली, बीआरसी के सर्टिफिकेट की एक्सपायरी ओनली एंड ओनली 1 ईयर होती है फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफिकेट इशुएंस। चैप्टर 1 का जो क्लॉज नंबर 2 है दैट टॉक्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसके अंदर ऑर्गेनोग्राम की बात करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनोग्राम होना चाहिए ताकि इस बात का आइडिया हो सके कि कौन किसको रिपोर्टिंग है। सेकंड, जो इस क्लॉज की रिक्वायरमेंट है वो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये भी अगेन बीआरसी ने रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है टॉप मैनेजमेंट को दी है कि टॉप मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल कि वो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच इंडिविजुअल दैट इज इम्पैक्टिंग फूड सेफ्टी और क्वालिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट और मैनेजमेंट सिस्टम, वो मैनेजमेंट डिफाइन करेगी कि किसी के पास क्या रूल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एंड क्या अथॉरिटीज हैं, जो अमूमी तौर पर हम जॉब डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में डिफाइन कर रहे होते हैं। चैप्टर नंबर 2 जो बीआरसी का है दैट इज नोन एज द फूड सेफ्टी प्लान और हैसअप। इसके अंदर जो पहला सेक्शन है दैट टॉक्स अबाउट सीनियर मैनेजमेंट कमिटमेंट्स टुवर्ड्स कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। वो कैसे शो होगी? वो बेसिकली शो होती है कि टॉप मैनेजमेंट एक फूड सेफ्टी टीम जो मल्टी डिसिप्लिनरी होनी चाहिए वो सिलेक्ट करे, एक फूड सेफ्टी टीम लीडर सिलेक्ट करे, और यहाँ पे बीआरसी स्पेसिफिकली रिक्वायर करता है कि फूड सेफ्टी टीम लीडर शुड बी वन जिसको हैसअप की इन डेप्थ नॉलेज हो और हैसअप प्लान की। फूड सेफ्टी टीम की अवेयरनेस हैसअप पे जरूरी है, लेकिन फूड सेफ्टी टीम लीडर के लिए वो बीआरसी रिक्वायर करता है उसको इन डेप्थ नॉलेज हो ड्यूरिंग ऑडिट। ये डिफरेंट सवालों से भी गेज हो सकते हैं, प्लस उसकी जो प्रोफाइल है एफएसटीएल की वो भी वेरीफाई की जा सकती है और डिफरेंट तरीकों से उसको वेरीफाई कर लेते हैं। सेकंड जो स्टेप है जो चैप्टर 2 का है वो है प्री रिक्विजिट्स। प्री रिक्विजिट्स जो एक फूड सेफ्टी इंडस्ट्री के अंदर होने चाहिए, किसी फूड इंडस्ट्री में होने चाहिए, वो तमाम प्री रिक्विजिट्स की बीआरसी भी बात करता है दैट इज क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग, pest management, maintenance programs for equipments and buildings, personal hygiene requirements, staff trainings, purchasing of raw material and services, transportation arrangement for product delivery, process to prevent cross contamination in raw material storage area, in production areas, in finished goods storage areas, allergen management program और allergen control program। ये तमाम प्री रिक्विजिट्स बीआरसी रिक्वायर करता है कि मिनिमम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एटलीस्ट इन तमाम प्री रिक्विजिट्स को एड्रेस करे इफ वो चाहती है कि वो बीआरसी सर्टिफाई हो जाए।
देन जो उसका क्लॉज नंबर 2.3 है, दैट टॉक्स अबाउट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। यही क्लॉज आपका जो है कोडेक्स एलिमेंटेरियस का स्टेप नंबर 2 है फॉर अचीविंग हैसअप, जिसके अंदर आप जब प्रोडक्ट डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो इसके लिए लाजमी है कि आप अपनी एंड प्रोडक्ट को भी डिस्क्राइब करेंगे और अपने तमाम रॉ मटेरियल्स को भी डिस्क्राइब करेंगे, उनकी करें। और सेकेंडली जो पैकेजिंग मटेरियल जो इन कॉन्टेक्ट विद प्रोडक्ट आता है उसको भी डिफाइन करेंगे। इसके लिए भी बीआरसी ने एक रिक्वायरमेंट दी हुई है कि कंपोजिशन उस प्रोडक्ट का डिफाइन होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ इंग्रेडिएंट्स पता होने चाहिए, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट स्पेसिफिक रॉ मटेरियल। फॉर एन एग्जांपल, किसी रॉ मटेरियल की पीएच कितनी है, इसकी वाटर एक्टिविटी कितनी होनी चाहिए जिसको हम खरीद रहे हैं, या फिनिश प्रोडक्ट की जिसको हम फिनिश गुड कह रहे हैं उसकी पीएच कितनी होनी चाहिए। देन उसकी बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस की बात करते हैं कि किस प्रोसेस के थ्रू ये मैन्युफैक्चर हो रही है, पैकेजिंग मटेरियल इसका क्या होगा, इसके अंदर ये पैक होगी। स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशंस उसके अंदर हम डिफाइन करें कि किस स्टोरेज मैकेनिज्म के थ्रू ये स्टोर होगी, किस ट्रांसपोर्टेशन चैनल के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होगी, मैक्सिमम शेल्फ लाइफ उसकी क्या है, ये हम डिटरमाइन करके रखें। चैप्टर 2 में जो 2.4 क्लॉज है, दैट टॉक्स अबाउट इंटेंडेड यूज, कि जो हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं वो उसका इंटेंडेड यूज क्या है। इट इज रेडी टू ईट प्रोडक्ट, या इट इज रेडी टू कुक प्रोडक्ट, इट इज कन्फेक्शनरी आइटम, मील्स के अंदर आता है, किस में आता है, तो उसका इंटेंडेड यूज। इस इंटेंडेड यूज में बीआरसी स्पेसिफिकली रिक्वायर करता है कि जब हम अपना इंटेंडेड यूज डिस्क्राइब कर रहे हो तो उसके अंदर हम वल्नरेबल ग्रुप्स, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स हो सकते हैं, इन्फेंट्स हो सकते हैं, या अदर वल्नरेबल ग्रुप्स स्पेसिफिकली किसी एलर्जी से प्रोन हो, तो हमें उनको कंसीडर करना बहुत जरूरी है। क्लॉज नंबर 2.5 के अंदर, चैप्टर 2 के क्लॉज नंबर 2.5 के अंदर बीआरसी रिक्वायर करता है कि एक प्रोसेस फ्लो डायग्राम एक ऑर्गेनाइजेशन को बनानी पड़ेगी। वो बनाए और उसके अंदर तमाम स्टेप्स फ्रॉम फार्म टू फोक कवर हो रहे हो, फ्रॉम रॉ मटेरियल रिसीविंग टू डिस्पैच, उसके अंदर ईच एंड एवरी प्रोसेस स्टेप्स आ रहा हो, उसमें वेस्टेजेस हो, कोई प्रोसेस एड किस स्टेप के ऊपर आ रही है वो उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा हो, वेस्टेज किस स्टेप के ऊपर रिमूव हो रहा है वो रिफ्लेक्ट हो रहा हो, किसी स्टेज के ऊपर यूटिलिटी प्रोडक्ट से कांटेक्ट में आ रही है या प्रोसेस का पार्ट बन रही है तो वो उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा हो। तो एक डिटेल्ड प्रोसेस फ्लो डायग्राम की बीआरसी रिक्वायर करता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, 2.6 जो है प्रोसेस फ्लो बना लिया, उसके बाद बीआरसी रिक्वायर करता है इस प्रोसेस फ्लो डायग्राम को हमें ऑन साइट जाके वेरीफाई करना है, और ये वेरिफिकेशन फूड सेफ्टी टीम करती है, या फूड सेफ्टी टीम के बिहाफ के ऊपर एटलीस्ट जो आपका एफएसटीएल है, फूड सेफ्टी टीम लीडर या हेल्थ टीम लीडर, वो उसको ऑन साइट जाके वेरीफाई करेगा और इसको एज अ डॉक्यूमेंट एविडेंस वो प्रेजेंट भी करेगा ड्यूरिंग ऑडिट। आपने जब प्रोसेस फ्लो डायग्राम बना ली, उसको वेरीफाई कर लिया, देन बीआरसी रिक्वायर करता है, जो हैसअप के पार्ट भी है, कि हमें पोटेंशियल हैजर्ड्स एसोसिएटेड, जो किसी भी एक प्रोसेस स्टेप पे पोटेंशियल हैजर्ड्स हो सकते हैं, वो परफॉर्म करना है, उसकी हैजर्ड एनालिसिस। तो तमाम प्रोसेस स्टेप्स के अगेंस्ट के ऊपर आप एक हैजर्ड एनालिसिस करते हैं कि इस प्रोसेस स्टेप्स के ऊपर क्या हैजर्ड हो सकता है। इधर इट कुड बी केमिकल हैजर्ड, इधर इट कुड बी बायोलॉजिकल हैजर्ड, इधर इट कुड बी माइक्रोबायोलॉजिकल हैजर्ड, इधर इट कुड बी फिजिकल हैजर्ड, इधर इट कुड बी एलर्जन कंटेमिनेशन। सो आप उसके अगेंस्ट के ऊपर पूरी डिटेल्ड एक हैजर्ड एनालिसिस करते हैं अगेंस्ट ईच प्रोसेस स्टेप ऑफ योर प्रोसेस फ्लो डायग्राम और योर प्रोसेस। आफ्टर डूइंग, आपने हैजर्ड एनालिसिस कर लिया, उस हैजर्ड एनालिसिस के बाद आप सीसीपीज आइडेंटिफाई करते हैं। उन सीसीपीज के आइडेंटिफाई करने का डिफरेंट तरीका होता है। बीआरसी कहता है कि कोई भी मेथोडोलॉजी आप चूज कर सकते हैं, इधर इट कुड बी डिसीजन ट्री मेथोडोलॉजी बेस्ड ऑन सिवियरिटी एंड लाइक्लीहुड, कि उसकी अकरेंस कितनी है उस पर्टिकुलर हैजर्ड की। आप उसके सीसीपीज डिफाइन करते हैं कि इस हैजर्ड को रोकने के लिए क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट क्या है। वंस आपने सीसीपीज आइडेंटिफाई कर लिए, उसके अगेंस्ट पे आप क्रिटिकल लिमिट्स आइडेंटिफाई करते हैं कि हर सीसीपी के अगेंस्ट के ऊपर क्रिटिकल लिमिट्स आइडेंटिफाई होना बहुत जरूरी है। क्रिटिकल लिमिट्स शुड बी मेजरेबल और इट शुड बी
मेजरेबल और ये हर बैच के अंदर, हर प्रोडक्ट के अंदर इक्वली मॉनिटर हो सके। अगर ये प्रोडक्ट के अंदर वेरी कर रहे हो तो इसको हम क्रिटिकल लिमिट नहीं कह सकते। अगर ये मेजरेबल ना हो तो हम इसको क्रिटिकल लिमिट्स नहीं कह सकते। सो क्रिटिकल लिमिट्स शुड बी मेजरेबल। जो भी हम क्रिटिकल लिमिट्स सेलेक्ट करेंगे, बीआरसी रिक्वायर करता है इट शुड बी बेंचमार्क टुवर्ड्स एनी साइंटिफिक लिटरेचर, either legal requirement, regulatory requirement और statutory requirement। और अगर कंपनी बेस्ड ऑन अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के ऊपर उसको, और अपने एक्सपीरियंस के ऊपर और अपनी स्टडी के ऊपर उसको सिलेक्ट कर रही है, तो उसके पास एक अच्छा खासा डेटा, मोर देन प्रोडक्ट शेल्फ लाइफ उसके पास होना चाहिए, जिसकी बेसिस के ऊपर वो क्रिटिकल लिमिट स्टेब्लिश कर रहा है। क्रिटिकल लिमिट्स स्टेब्लिश करने के बाद पीआर आपको मॉनिटरिंग सिस्टम अगेंस्ट ईच सीसीपी डिफाइन करना है। मॉनिटरिंग सिस्टम में आपको डिफाइन करना होता है कि इस सीसीपी को कौन मॉनिटर करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, क्या प्रोसेस करेगा और रिकॉर्ड कहाँ करेगा। सेकंड, इसको वेरीफाई कैसे करेंगे आप। आफ्टर एस्टेब्लिशिंग मॉनिटरिंग सिस्टम, उसके बाद करेक्टिव एक्शन प्लान रिक्वायर होता है। इन केस सीसीपी डेविएट हो जाएगा, क्रिटिकल लिमिट्स रीच हो गई, तो करेक्टिव एक्शन इन प्लेस होगा। उस वक्त करेक्टिव एक्शन प्लान क्या होगा, उस प्रोडक्ट का जिसपे सीसीपी ब्रीच हुई है उसके साथ क्या होगा, उस प्रोडक्ट के साथ क्या किया जाएगा, उसके लिए आपको एक कंप्लीट करेक्टिव एक्शन प्लान डिस्क्राइब करना है। उसके बाद भी जो है एक वेरिफिकेशन प्रोग्राम है, जो आपने ऊपर सीसीपीज आइडेंटिफाई किए हैं, जो प्रीरिक्विजिट डिफाइन किए हैं, या पूरे हैसअप सिस्टम के लिए एक वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स आपको डिफाइन करने पड़ेंगे कि तमाम कंट्रोल मेजर्स को आप कैसे वेरीफाई कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सेवेंथ प्रिंसिपल भी है हैसअप का, उसमें है डॉक्यूमेंटेशन अगेंस्ट ईच हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, रॉ मटेरियल डिस्क्रिप्शंस के ऊपर आपको डॉक्यूमेंट करने हैं और उनकी रिकॉर्ड कीपिंग करनी है। रिकॉर्ड कीपिंग अगेंस्ट ईच सीसीपी होगी, जो भी आपने सीसीपीज डिफाइन किए हुए, पीआरपीज के अगेंस्ट के ऊपर जो मॉनिटरिंग प्रोग्राम है उसकी रिकॉर्ड कीपिंग होगी। फिर चैप्टर 2 के अंदर बात होती है रिव्यू ऑफ हैजअप। तो बीआरसी डिफाइन करता है कि एटलीस्ट आपको एटलीस्ट एनुअली आपको अपना हैजअप प्लान रिव्यू करना है। अगर आपके हैजअप प्लान के अंदर कोई चेंज नहीं है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आप 1 साल से पहले भी कर सकते हैं। इन केस कब, जब आपका कोई रॉ मटेरियल चेंज हो जाए, या रॉ मटेरियल के सप्लायर्स, जो मेजर रॉ मटेरियल है उसका सप्लायर चेंज हो जाए, आप किसी इंग्रेडिएंट के अंदर चेंज कर दें, या किसी प्रोसेस स्टेप के अंदर चेंज कर दें, प्रोसेस फ्लो के अंदर, या प्रोसेस जो आपके प्रोसेस है उसके अंदर जो इक्विपमेंट लगा हुआ है उसमें चेंज हो जाए, पैकेजिंग मटेरियल, फॉर एन एग्जांपल पहले आप ग्लास जार बॉटल्स के अंदर वो कर रहे थे, नाउ आप पेट जार बॉटल्स के अंदर प्रोडक्ट पैक कर रहे हैं। तो आपको अपना पूरा हैजर्ड प्लान और पूरा हैजर्ड एनालिसिस दोबारा से रिव्यू करने की जरूरत है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने जो चेंज किया है उसकी वजह से कोई न्यू हैजर्ड हमारे सिस्टम के अंदर या हमारे प्रोसेस के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा हो। इन केस आपको हैसअप एक सूरत में और रिव्यू करना पड़ जाता है, जब अगर आपकी प्रोडक्ट रिकॉल या विड्रॉल की तरफ चली जाए, या कोई नई लीगल रिक्वायरमेंट आ जाए, तो उसके अगेंस्ट के ऊपर भी आप हैसअप रिव्यू कर रहे होते हैं अपना। देन चैप्टर 3 आता है बीआरसी में, दैट इज कॉल्ड फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। जो चैप्टर 3 स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स विद फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनुअल। बीआरसी स्पेसिफिकली रिक्वायर करता है कि एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को कवर करता हुआ एक कंप्लीट मैनुअल एक ऑर्गेनाइजेशन को एड्रेस करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, जो कि अप्रूव्ड होगा बाय टॉप मैनेजमेंट। इस क्वालिटी या फूड सेफ्टी मैनुअल के अंदर तमाम वर्क इंस्ट्रक्शंस या प्रोसीजर्स और रिकॉर्ड्स का रेफरेंस होगा, कि जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एप्लीकेबल है। इस क्वालिटी मैनुअल के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो 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 क्लॉजेस एप्लीकेबल है वो उसमें डिक्लेयर करता है। वो अपना प्रोडक्ट स्कोप इसके अंदर डिफाइन करता है कि किस प्रोडक्ट स्कोप के ऊपर वो बीआरसी की सर्टिफिकेशन ले रहा है,
वो तमाम चीज़ें इस क्वालिटी और फूड सेफ्टी मैनुअल का पार्ट होती हैं. देन क्लॉज नंबर 3.2 टॉक्स अबाउट इन चैप्टर नंबर 3 अबाउट डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्रोग्राम. डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्रोग्राम के एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन से डॉक्यूमेंट जो है एक्सेप्टेड होंगे, क्या प्रोटोकॉल होगा किसी भी डॉक्यूमेंट का, वो उसके ऊपर बात करता है कि इसको कैसे, कोई डॉक्यूमेंट है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का कैसे वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा, उसका पूरा प्रोटोकॉल डिफाइन करता है कि उसके ऊपर रिव्यू नंबर होगा, इशूअर का नाम होगा, डेट होगा, उसको कौन अप्रूव करेगा, वो कंप्लीट मैकेनिज्म, किसी भी डॉक्यूमेंट के अप्रूव करने का क्या मैकेनिज्म होगा, वो आपको कंप्लीट उसमें डिफाइन करना है. क्लॉज नंबर 3.3 टॉक्स अबाउट रिकॉर्ड कंप्लीशन एंड मेंटेनेंस. ये मेंटेनेंस रिकॉर्ड से मुराद है कि रिकॉर्ड्स की मेंटेनेंस कैसे होती है. स्पेसिफिकली अदर देन एनी अदर स्टैंडर्ड, बीआरसी रिक्वायर करता है कि आपको मिनिमम तमाम रिकॉर्ड्स अपने सिस्टम की एटलीस्ट उस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ प्लस 12 मंथ्स रखने. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ 6 मंथ्स है तो उसके रिकॉर्ड 6 मंथ्स प्लस 12 मंथ रखे जाएंगे फॉर पर्टिकुलर दैट बैच. उसके सीसीपीज के रिकॉर्ड्स, उसकी प्रोडक्ट प्रोसेसिंग के रिकॉर्ड्स, उसकी वेरिफिकेशन के रिकॉर्ड्स, उसके प्रोसेस कंट्रोल्स के रिकॉर्ड, तमाम रिकॉर्ड्स आपको एटलीस्ट प्रोडक्ट शेल्फ लाइफ, वो कुछ भी हो सकती है बेस्ड ऑन दैट रिस्क असेसमेंट और शेल्फ लाइफ स्टडी, और प्लस 12 मंथ्स आपको एटलीस्ट रखने हैं. इससे ज्यादा रख सकते हैं, इससे कम नहीं रख सकते. इन केस हम इससे कम रखते हैं तो अगेन हमारे सिस्टम के अगेंस्ट पे एक एनसीआर रेज हो जाती है. क्लॉज नंबर 3.4 टॉक्स अबाउट इंटरनल ऑडिट. इंटरनल ऑडिट की फ्रीक्वेंसी जो है बीआरसी डिफाइन करता है कि मिनिमम किसी भी सिस्टम के अंदर अदर देन अदर ऑडिट्स, पूरे मैनेजमेंट सिस्टम, फूड क्वालिटी एंड मैनेजमेंट, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के आपको क्वार्टरली ऑडिट करने हैं बेस्ड ऑन रिस्क. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक सेक्शन में रिस्क ज्यादा है जो इम्पैक्ट कर सकता है प्रोडक्ट की क्वालिटी या सेफ्टी के ऊपर, तो उसके ऑडिट की फ्रीक्वेंसी दूसरे डिपार्टमेंट्स या दूसरे फंक्शन से ज्यादा होगी. अ पार्ट ऑफ दीज मैनेजमेंट इंटरनल ऑडिट्स या होल सिस्टम इंटरनल ऑडिट्स, बीआरसी रिक्वायर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जीएमपी ऑडिट्स का भी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जो एटलीस्ट मंथली बेसिस के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ हुआ. एक ऑर्गेनाइजेशन में जीएमपी वेरिफिकेशन या जीएमपी ऑडिट का कोई ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए जिसके थ्रू वो अपनी जीएमपी प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट, सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन को वेरीफाई कर सके. उसके लिए जीएमपी ऑडिट्स की रिक्वायरमेंट है जो एटलीस्ट मंथली बेसिस के ऊपर होनी चाहिए. देन चैप्टर 3 टॉक्स अबाउट सप्लायर एंड रॉ मटेरियल अप्रूवल परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, जिसके अंदर वो कहता है मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड पैकेजिंग मटेरियल को आपको डिफाइन करना होगा. किसी भी रॉ मटेरियल के अंदर के, इसके अंदर फूड फ्रॉड के चांसेस क्या है, सबसे पहले इसका रिस्क क्या है कि अगर ये मेन इंग्रेडिएंट है देन इट कुड बी हाई रिस्क इंग्रेडिएंट या हाई रिस्क रॉ मटेरियल. इसके अंदर फूड फ्रॉड के चांसेस है या नहीं है डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमिक सिचुएशन, जिस भी कंट्री से या जिस भी लैंड से वो आ रहा है. प्लस इसमें एलर्जन है या नहीं है, अगर है तो उस और सप्लायर ने एलर्जन कंट्रोल प्रोग्राम क्या लिया हुआ है. सेकेंडली फॉरेन बॉडी कंट्रोल उसके ऊपर कैसे है, क्रॉस कंटेमिनेशन को कैसे रोकना है उन सप्लाईज के अंदर. थर्ड, वो रिक्वायर करता है रॉ मटेरियल रिस्क असेसमेंट्स की. एक स्पेसिफिक वो रिक्वायरमेंट है कि आप तमाम रॉ मटेरियल की एक रिस्क असेसमेंट करेंगे, उसके अगेंस्ट पे आप उसको रेट करेंगे कि ये जो हमारा रॉ मटेरियल है इधर इट इज हाई रिस्क रॉ मटेरियल, लो रिस्क रॉ मटेरियल या मीडियम रिस्क रॉ मटेरियल. एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं क्विक कि हाई रिस्क अमूमी तौर के ऊपर वो इंग्रेडिएंट्स या वो रॉ मटेरियल्स या वो पैकेजिंग मटेरियल होते हैं जो आपकी डायरेक्ट प्रोडक्ट का पार्ट होते हैं और बड़े वनरेबल होते हैं. लो रिस्क वो होते हैं जो आपकी डायरेक्ट प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होते, ना ही प्रोडक्ट से कांटेक्ट में आ रहे होते हैं. मीडियम रिस्क के ऊपर अमूमी तौर के ऊपर वो रॉ मटेरियल या वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपकी हो सकता है प्रोडक्ट का पार्ट हो लेकिन इतने वनरेबल ना हो, या वो प्रोडक्ट से कांटेक्ट में आ रहे हो, लाइक पैकेजिंग फिल्म्स, वो हो सकती हैं. अदर वो मीडियम रिस्क के अंदर आते हैं. बीआरसी रिक्वायर करता है कि सप्लायर ऑडिट प्रोग्राम आपके पास हो
सप्लायर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म हो और उनका अप्रूवल मैकेनिज्म डॉक्यूमेंटेड हो। एक अप्रूव लिस्ट ऑफ सप्लायर्स हो। सेकंड, सप्लायर ऑडिट्स के लिए वो एक फ्रीक्वेंसी डिफाइन करता है कि तमाम सप्लायर्स के अगेंस्ट के ऊपर एटलीस्ट उनके अप्रूवल के बाद आप 3 साल के बाद एक बार उसका ऑडिट जरूर करेंगे, या कोई मैकेनिज्म डिफाइन करेंगे कि इसकी री इवेल्युएशन कैसे की आपने। क्लॉज नंबर 3.5.2 जो है चैप्टर 3 का, वो डिफाइन करता है रॉ मटेरियल एंड पैकेजिंग एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, कि आप किसी रॉ मटेरियल को कब एक्सेप्ट करेंगे, उसका इंस्पेक्शन पॉइंट क्या है, उसको एक्सेप्ट करने का क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ सर्विसेज सप्लायर्स कैसे है, एंड आउटसोर्स प्रोसेसिंग कैसे हो रही है। इसी में करेक्टिव एक्शंस एंड प्रिवेंटिव एक्शंस की भी बात होती है चैप्टर 3 में। कंट्रोल ऑफ नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट की भी बात होती है एंड ट्रेसिबिलिटी की भी बात होती है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ट्रेसिबिलिटी की बात कर लेता हूँ, कि ट्रेसिबिलिटी के ऊपर बीआरसी का फोकस है फ्रॉम फार्म टू फोक। और बीआरसी रिक्वायर करता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन साल में एक बार अपने ट्रेसिबिलिटी एक्टिविटी खुद परफॉर्म करेगी और इस बात को इंश्योर करे कि वो 4 घंटे के अंदर पूरी ट्रेसिबिलिटी कर लेती है कि रॉ मटेरियल कहाँ से आया था और किसको डिस्पैच हुआ था, कब कब मैन्युफैक्चर हुआ, किस प्लांट पे मैन्युफैक्चर हुआ, और कंप्लीट ट्रेसिबिलिटी की डिटेल्स को इन हार्ड फॉर्म और इन सॉफ्ट फॉर्म वो गैदर करने में कामयाब हो जाती है। कंप्लेंट हैंडलिंग की बात करता है कि पूरा एक प्रोटोकॉल लिखा हुआ होना चाहिए कैसे कंप्लेंट हैंडलिंग होती है। सेक्शन नंबर 3 का जो लास्ट पॉइंट है वो है मैनेजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स। इन केस के अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोडक्ट रिकॉल या विड्रॉल का इंसिडेंट हो जाता है तो उसको कैसे कैटर करेंगे, और अगर नहीं होता तो एटलीस्ट वो साल में एक बार उस प्रोसीजर को रिव्यू जरूर करेंगे, कि उसकी वेरीफाई करेंगे कि ये कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है। अगर इन केस किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉल करनी पड़ जाती है तो उसके लिए लाजमी है कि वो अपनी सर्टिफिकेशन बॉडी को या रेगुलेटरी अथॉरिटी को विद इन 3 डेज नोटिफाई करें। साइट स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं जो चैप्टर 4 के अंदर वो कवर होते हैं। बेसिकली इस साइट स्टैंडर्ड्स के अंदर बीआरसी कंप्लीट गाइडलाइंस दे रहा है कि एक बीआरसी की साइट को दिखना कैसा है, या उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, उसका बिल्डिंग फैब्रिक कैसा होना चाहिए, फ्लोर कैसा होना चाहिए, लाइट्स कैसी होनी चाहिए, उसमें यूटिलिटीज जो इस्तेमाल हो रही है वो कैसी होनी चाहिए, इक्विपमेंट्स कैसी होनी चाहिए, स्टाफ फैसिलिटीज उसमें कैसी होनी चाहिए। फिर उसके अंदर वो बात करते हैं, चैप्टर 4 ही के अंदर वो बात कर रहा है कि केमिकल कंट्रोल प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, मेटल कंट्रोल प्रोग्राम के ऊपर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेटल कंट्रोल प्रोग्राम है उसको कैसा होना चाहिए। फॉरेन बॉडी डिडक्शंस की बात करता है कि रिमूवल ऑफ, अगर कोई फॉरेन बॉडी आ जाती है, कोई फॉरेन मैटर है, तो उसकी रिमूवल या डिडक्शन का क्या मैकेनिज्म है। एक्सरेज इंस्टॉल हो, ऑप्टिकल सॉर्टिंग हो, या मेटल डिटेक्टर इंस्टॉल हो, और जहां जहां ये सॉर्टर्स लगे हुए हो इट शुड बी रीट्रैकिंग बैंड के साथ लगे हुए होने चाहिए। ये बीआरसी की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है। केमिकल कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर वो कहता है कि केमिकल कंट्रोल अप्रूव्ड केमिकल लिस्ट होनी चाहिए आपके पास, मेटल कंट्रोल मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि आपके प्रोडक्ट के अंदर मेटल कंटेमिनेशन ना हो सके, वुड कंट्रोल होना चाहिए, और वुड के यूज को बीआरसी में वो करता है, डिस्करेज करता है। चैप्टर 4 के अंदर ही वो बात करता है हाउसकीपिंग की, वेस्ट मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट ऑफ सरप्लस फूड्स की, पेस्ट कंट्रोल की। पेस्ट कंट्रोल के अंदर वो स्पेसिफिकली रिक्वायर्स के अंदर वो डिस्पैच एंड ट्रांसपोर्ट की बात करता है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो बीआरसी रिक्वायर करता है वो बेसिकली कर रहा है प्रोडक्ट डिजाइन की, कि किसी प्रोडक्ट का डिजाइन का कंट्रोल प्रोग्राम क्या है, प्रोडक्ट लेबलिंग, बेंचमार्किंग, आपकी जिस भी और कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहा हो वहाँ की लीगल रिक्वायरमेंट्स के अंदर, मैनेजमेंट ऑफ एलर्जेंस के, उसके ऊपर के एलर्जेंस को कैसे हाईलाइट किया हुआ है। और इन केस अगर आपने कोई क्लेम किया हुआ है, फॉर एन एग्जाम्पल हलाल का क्लेम किया हुआ है, कोशर का क्लेम किया हुआ है, या वर्जिन ऑयल ऑलिव ऑयल का क्लेम किया हुआ है, या हिमालयन पिंक सॉल्ट का, तो उसकी ऑथेंटिसिटी का क्लेम क्या है। और प्लस उसके ऊपर चेन ऑफ कस्टडी की डिमांड करता है कि उसको आप कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि उसी चेन ऑफ कस्टडी के अंदर आ रहा है। फिर यूटिलिटीज किसी प्रोडक्ट के अंदर क्या इस्तेमाल हो रही है उसकी बात करता है। सेकंड फिर बात करता है प्रोडक्ट इंस्पेक्शन की एंड टेस्टिंग्स की, कि कब कब कहाँ कहाँ प्रोडक्ट इंस्पेक्शन हो रही है, कहाँ कहाँ टेस्टिंग हो रही है। फिर बात करता है लेबोरेटरी टेस्टिंग की। लेबोरेटरी टेस्टिंग के अंदर वो स्पेसिफिकली रिक्वायर करता है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में माइक्रोबायोलॉजिकल लैब है
तो इट शुड नॉट डायरेक्टली ओपन ऑन प्रोडक्शन फ्लोर, उसकी वेस्ट प्रोडक्शन लाइन के अंदर ना जा रही हो, एंड एक डिटेल उसके अंदर है। इसी क्लॉज के अंदर, प्रोडक्ट कंट्रोल की क्लॉज के अंदर वो बात करता है चैप्टर के अंदर कि प्रोडक्ट रिलीज मैकेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंफर्मिंग प्रोडक्ट का क्या रिलीज मैकेनिज्म है वो डिफाइन करना है। और इन केस नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट है और उसको कैसे इवेल्युएट करके नॉन कंफर्मिंग डिक्लेयर किया जाएगा, अथॉरिटी की बात करते हैं। चैप्टर 6 के अंदर वो प्रोसेस कंट्रोल्स की बात करता है। अगर हम इसको इन शॉर्ट अगर बात करें तो बेसिकली क्यूसी कंट्रोल्स, जो इनलाइन कंट्रोल्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में लगे हुए होते हैं, उसकी बात करता है कि हर किसी भी पैक के ऊपर लेबलिंग की वेरिफिकेशन के लिए कि बैच कोड प्रिंटेड है या नहीं है, इसके ऊपर एक स्पेसिफिक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आ रही है या नहीं आ रही, वो कैसे आ रहा है, वो लेबलिंग एंड पैक कंट्रोल की बात करता है। सेकंड बात करता है क्वांटिटी, जो क्वांटिटी हम उस पैक के ऊपर लिख रहे हैं उसको कैसे इंश्योर कर रहे हैं, उसकी वेरिफिकेशन का क्या मैकेनिज्म है। और प्लस जो हमने मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग डिवाइसेस लगाई हुई है, इनकी कैलिब्रेशन का और कंट्रोल, इनकी कैलिब्रेशन का, कंट्रोलिंग का क्या मैकेनिज्म है, तमाम उन डिवाइसेस का जो मेजरिंग डिवाइसेस है और किसी भी प्रोसेस का पार्ट है। चैप्टर 7 के अंदर जो बीआरसी रिक्वायर करता है, वो रिक्वायर करता है पर्सनल्स के ऊपर, कि पर्सनल्स की ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, उनकी हाइजीन कैसी होनी चाहिए। मेडिकल स्क्रीनिंग की बात करता है कि एटलीस्ट एज पर लीगल लॉ एटलीस्ट मिनिमम तमाम वर्कर्स जो किसी फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और डायरेक्ट फूड हैंडलर्स हैं, उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग होनी चाहिए। प्रोटेक्टिव क्लोथिंग्स की बात करता है कि प्रोटेक्टिव क्लोथिंग्स होनी चाहिए। सिमिलरली वो बात प्रोटेक्टिव क्लोथिंग्स के अंदर बीआरसी के अंदर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि नॉन बटन शर्ट्स होनी चाहिए, वेलक्रो हो, वो एक्सेप्टेबल है। सिमिलरली विजिटर्स के लिए प्रोटोकॉल्स की बात करता है क्लॉज नंबर 7 के अंदर। चैप्टर 8 के अंदर जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, उसके अंदर बात करता है हाई रिस्क एरिया, हाई केयर एरिया या एम्बियंट हाई केयर एरिया के लिए। हाई रिस्क एरिया में वो प्रोडक्ट्स आती हैं जिसके तमाम कंपोनेंट्स 70 मिनिमम 70 सेंटीग्रेड के ऊपर मिनिमम से 2 सेंटीग्रेड तक कुक हुए हुए हों। यानी ये रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स हो सकती हैं या रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स होती हैं, या वो प्रोडक्ट्स जिनमें लिस्टीरिया स्पीसीज की ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। इनको हमें फ्रोजन फॉर्म में रखना होता है, और अगर हम इनको फ्रोजन फॉर्म में ना रखें तो इनमें लिस्टीरिया की ग्रोथ हो जाएगी। और हाई रिस्क एरिया में प्रोडक्ट्स की एग्जांपल हो सकती है मीट्स जो हम खाते हैं, सीख कबाब्स हो सकते हैं, और इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो आती हैं। उसके बाद है हाई केयर एरिया। हाई केयर एरिया के अंदर, जिसके अंदर लिस्टीरिया स्पीसीज की ग्रोथ के चांसेस होते हैं, लेकिन हमें प्रोडक्ट को चिलिंग टेम्परेचर की तरफ होता है। फॉर एन एग्जाम्पल डेयरी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, जैसे योगर्ट है, आइसक्रीम है, जिनको 1 to 4 या 1 to 5 या उस पे रखते हैं, उनको हाई केयर एरिया डिक्लेयर करता है। हाई केयर एरिया के अंदर प्री रिक्विजिट्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है कि यहाँ का वर्कर किसी और जगह पे ना जाए, और यहाँ पे किसी और सेक्शन का वर्कर इस हाई केयर एरिया में ना आ सके। क्लॉज नंबर 9 जो है ट्रेडेड गुड्स का, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि एक साइट जो खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रही वो प्रोडक्ट, मगर उसकी ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व है और उसके प्रोडक्ट, उसके स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो प्रोडक्ट शामिल है, तो उसको ट्रेडेड गुड्स का ऑडिट करवाना पड़ेगा। क्लॉज नंबर 9 और 8 नॉट एप्लीकेबल भी हो सकते हैं और एप्लीकेबल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी ऐसी एक्टिविटी में जो उसके स्कोप में डिफाइंड है लेकिन खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रही, तो उसके क्लॉज नंबर 9 का ऑडिट होगा अगेंस्ट ट्रेडेड गुड्स। और किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हाई केयर एरिया है तो उसके क्लॉज नंबर 8 का ऑडिट होगा। हाई केयर एरिया नहीं, हाई रिस्क एरिया, हाई केयर एरिया या एम्बियंट हाई केयर एरिया नहीं है, तो वो क्लॉज नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। ऑडिट ग्रेडिंग की बात कर लेते हैं कि इन केस आपको थ्रू आउट बीआरसी 5 एनसीआर मिलती हैं तो आपको डबल ए ग्रेड मिलेगा। अगर 5 से ज्यादा यानी 6 to 10 है और कोई मेजर एनसीआर नहीं है तो आपका ए ग्रेड होगा, और अगर आप अनअनाउंस्ड स्कीम की तरफ है तो आपका ए प्लस ग्रेड होगा। अगर आपकी फाइंडिंग्स 11 से 16 है तो आपका ग्रेड बी होगा, और अगर आप अनअनाउंस्ड स्कीम की तरफ है तो आपका ग्रेड बी प्लस होगा। इसी तरीके से आपके ग्रेड आगे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एनसीआर बढ़ते रहेंगे।
अगर एक भी मेजर एनसीआर रेज हो जाती है तो यू कांट गो फॉर ए ग्रेड. Single major NCR and few number of minor NCRs result in B grade. अगर आपके पास दो मेजर एनसीआर रिलीज हो जाती हैं तो आपको बी ग्रेड भी अवार्ड नहीं हो सकता, आपको डायरेक्ट सी ग्रेड अवार्ड होगा. सी ग्रेड के अंदर डिसएडवांटेज ये है कि आपका री ऑडिट डेट 6 मंथ्स के अंदर होती है. जितनी भी एनसीआर आपको रेज होंगी आपको 28 डेज के अंदर क्लोज करनी होंगी. अगर कोई क्वेश्चन आंसर हैं आपके तो यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट अस एट QALearningHub@gmail.com. जितनी भी आपकी क्वेरीज होंगी हम कोशिश करेंगे कि उनको एज सुन एज पॉसिबल और बेस्ट टू द नॉलेज आंसर किया जा सके. Thank you so much, Sir Ali Sajjad, for your valuable time. The session was very